Hi everyone, you are watching the YouTube channel of Rao's Academy for Competitive Exams. This is me Varun Pradhan presenting the daily news review for 27th October 2022. So before we proceed, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. Well friends, in our previous video, we asked you a few questions. So first see what are their solutions. The question goes like, the United Nations observes Disarmament Week every year on which month? So the right answer to this question is October. Alright. Another question was, which state or union territory launched Kunj app mobile application to prevent cyber crimes against children? And the right answer is Kerala. So please make a note of these two questions, and now let us proceed and see what's there in today's news. There is this wonderful article published in the Hindu newspaper which is talking about Mulla Periyar Dam dispute between Kerala and Tamil Nadu and what action Kerala government took recently. This is talking about that issue. So before proceeding with this article, let us understand a background of this particular issue. So guys, the Mulla Periyar Dam is situated on confluence of two rivers. One is Mulayar River and other is Periyar River. Please remember these two rivers very nicely. And the dam is situated in Idukki district of Kerala. Alright, Idukki district of Kerala, but the dam is in control of Tamil Nadu state. This is very interesting fact. The dam is situated in Kerala, but it is under control of Tamil Nadu. Entire water of this dam is utilized by Tamil Nadu and not Kerala. So it is quite obvious that a dispute will arise. इसकी हिस्टोरिकल जर्नी की आप बात करें तो ये डैम 1895 में बना था. ब्रिटिश रूल तब हमारे देश में था और ब्रिटिश इंडिया ने तमिलनाडु को 999 ईयर्स की लीज पर यह डैम दे दिया था. ठीक है, और यही पूरा बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों स्टेट्स के बीच में. दो समस्याएं और इस डैम से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं. अव्वल तो ये बड़ा पुराना डैम है, तो वियर एंड टीयर इसमें होता जाता है, जिससे कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में बड़े इश्यूज आते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. वो इलाका डूब में आ सकता है, बहुत ज़्यादा पानी का वहाँ पर लॉगिंग हो सकता है. ये कुछ इश्यूज हैं. इन इश्यूज से ही रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है. ये आर्टिकल आपके पेपर 1 वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी काम में आएगा और पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेट करेगा. लेट्स सी and read this article. So recently the Karnataka government has constituted a 6-member committee which will prepare an emergency action plan, EAP. Alright, a committee has been constituted by the Kerala government which will make an emergency action plan which will be related to Mulla Periyar Dam in Idukki district of Kerala. Alright, that is it in this news. That is all I think. And two more BT facts which you may remember regarding this issue is that Dam Safety Act 2021, as you can see in your screen. So all the rules or policy etc related to dams are governed by Dam Safety Act of 2021. इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, यही कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जो कि बात कर रही है इसरो और नेविक की. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेविक. नेविक
का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। क्या है ये नेविक? सरल भाषा में कहा जाए तो नेविक इज द देसी वर्जन ऑफ जीपीएस। आप सभी ने अपने अपने मोबाइल फोन्स में मैप्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा, या जोमेटो स्विगी पर ऑर्डर करते हुए, या रैपिडो या ओला उबर बुलाते हुए भी आपने देखा होगा कि आपका कैब इतना दूर है। ये सब कैसे संभव हो पाता है? सो इट इज बिकॉज ऑफ जीपीएस, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑलराइट, तो जीपीएस के जैसी ही एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है, जिसका नाम है नेविक। 2018 के आसपास नेविक का आइडिया आया था, लेकिन अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। इसरो कह रहा है कि इट विल बूस्ट नेविक एंड इट विल वाइडन यूजर बेस ऑफ लोकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पूरे पर्टिकुलर आर्टिकल में, उनको हम बारी बारी देखते हैं। दो बातें आप अभी ध्यान रखिएगा कि नेविक किसका प्रोग्राम है? इसरो का प्रोग्राम है। ठीक है, नेविक का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। सो नेविक स्टैंड फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसको IRNSS भी कहा जाता है, IRNSS विच स्टैंड फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, यह भी आपके लिए याद करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं। मैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बता देता हूं। इसमें से 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, और बाकी की जो 4 सैटेलाइट हैं वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 2 सैटेलाइट्स के जो टाइप मैंने बताए हैं इनमें अंतर क्या होता है? देखिए, स्टेशनरी का सिंपल मीनिंग है विच हैज अ फिक्स्ड पोजीशन, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल मूव करती हैं। ठीक है, उनकी पोजीशन एक तरह से स्टेशनरी होती है, वो चेंज नहीं होती। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं। हम जानते हैं कि अर्थ ऐसा एक एक्सिस पर टिल्टेड है ना, तो इस टिल्टेड एक्सिस से सिंक होकर जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं उनको कहते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो हैं ये अर्थ के रोटेशन से सिंक होती हैं। ठीक है, अर्थ के रोटेशन से सिंक होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप इस सैटेलाइट सिस्टम के बारे में या नेविक के बारे में याद रखेंगे कि ये लगभग 36,000 किलोमीटर दूर सिचुएटेड होगा। एरिया से कुछ अर्थ से कुछ 36,000 किलोमीटर दूर पर ये सिचुएटेड होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप नेविक के बारे में याद रखिएगा। एक बात और छोटी सी आप याद रख लीजिएगा, इंडिया के पहले 3 ऐसे मुल्क और थे, 3 ऐसे देश और थे जिन्होंने अपना पोजीशनिंग सिस्टम डेवलप किया था। यूएस का जिक्र तो मैं कर ही चुका हूं, यूएस ने जीपीएस बनाया, उसके अलावा रशिया और चाइना। तो यदि नेविक इंप्लीमेंट हो जाता है तो इंडिया विल बी द 4th कंट्री टू हैव its own GPS system. Alright, so that is it in this particular news. इन सारी महत्वपूर्ण बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि यदि आप अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत वेल क्वालिफाइड फैकल्टी अवेलेबल है। यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी अवेलेबल है, सेपरेट फैकल्टी अवेलेबल है। तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ड्रीम सिविल सर्विसेज को कम ट्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, अगली न्यूज़ देखते हैं जो बात कर रहा है कि इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है। ठीक है, तो मिस्टर राजनाथ सिंह सेड that no side should resort to nuclear option। ये पूरा जो आर्टिकल है रिलेटेड है
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रशिया इंडिया का एक बड़ा अच्छा अलाई है। बार बार इंडिया बचता रहा है, एब्सटेन कर चुका यूएनएससी में रशिया के अगेंस्ट वोट देने से। तो इसी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है जो हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो रशियन डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ जी ने मुलाकात की और ये कहा कि दोनों साइड रशिया और यूक्रेन को बचना चाहिए न्यूक्लियर ऑप्शन से। रशिया का क्लेम यह है कि यूक्रेन हम पर डर्टी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर डर्टी वेपन्स? Dirty weapons are those weapons which are radioactive in nature but not as destructive as the nuclear weapon. Are we clear on this? ऐसे वेपन जो रेडियो एक्टिव तो हैं लेकिन न्यूक्लियर जितने घातक नहीं है उनको हम डर्टी वेपन्स कहते हैं। और रशिया ने कहा कि यदि यूक्रेन इस तरह के डर्टी वेपन्स का इस्तेमाल करेगा तो हम बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन को यूज करने में भी। और इसी के मद्देनजर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि दोनों साइड को बचना चाहिए इन चीज़ों से क्योंकि इसके इफेक्ट बहुत डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया की पोजीशन भी उन्होंने रीइटरेट की, है ना। उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से मसले और मसाइल सुलझाए जाते हैं, सारे इश्यूज जो हैं वो बंदूक की नोक पर नहीं सुलझते हैं। वी सपोर्ट पीसफुल नेगोशिएशंस, वी support peaceful dialogues. That is how things should be resolved, by sitting on the same table and not by usage of weapon, etc. Right? Then both the ministers agree to remain in touch. ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि भाई बाइलेटरल टाइज हमारे रशिया के साथ बड़े अच्छे हैं। तो दोनों मिनिस्टर्स ने, दोनों डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम टच में रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही कुछ खास इस आर्टिकल में था। आगे बढ़ते हैं और एक और धमाकेदार आर्टिकल देखते हैं जिसमें टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए मणिपुर में कुछ केव्स में से बैट्स को इविक्ट किया गया है, ठीक है। बैट्स इविक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव फॉर टूरिज्म सेज स्टडी। मणिपुर में कुछ केव्स हैं जो कि पैलियोलिथिक एज की मानी जाती हैं, ओल्ड स्टोन एज जिसको हम कहते हैं, है ना। ओल्ड स्टोन एज की कुछ केव्स थी जो कि खांगखुई नाम की जगह पर सिचुएटेड है मणिपुर में। लोकली इसको खांगखुई मंगसौर भी कहा जाता है। ये केव्स लाइम स्टोन से बनी हुई है ना। उखरूल डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। इन केव्स में लाइम स्टोन की बनी इन पैलियोलिथिक केव्स में एक्सकेवेशन किया गया और बैट्स को इविक्ट किया गया ताकि टूरिज्म को और बूस्टअप किया जा सके। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें काफ़ी सारी स्टडीज एक्सेट्रा भी की गई। कई सारे एक्सकेवेशंस के बाद स्टडी हुई जिनमें कुछ बढ़िया से रिजल्ट सामने आए। जैसे एक रिजल्ट आया कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब जापानीज इन्वेजन हो रहा था मणिपुर और नागालैंड के आसपास के इलाकों में, तब बहुत सारे लोग इन केव्स में शेल्टर भी लेते थे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपसे पूछी जा सकती है ना। अब आता है कि कौन सी बैट पॉपुलेशन यहां पर मिली है ना। कौन सी बैट पॉपुलेशन मिली है? तो यहां पर डोमिनेंटली एक जो बैट पॉपुलेशन मिली है वो है राइनोलोफिडे। राइनोलोफिडे स्पीशी की बैट्स यहां पर सबसे ज्यादा मिली हैं। उसके अलावा हिप्पोसाइड्रिडे फैमिली के भी बैट्स यहां पर मिले हैं, ठीक है। इन दोनों बैट्स के अलावा भी कुछ स्पीशीज मिली हैं, जैसे राउंड लीफ बैट मिली है। उसके अलावा इंटरमीडिएट हॉर्सशू बैट भी यहां से मिली है। नॉर्दर्न वूली हॉर्सशू बैट मिला है। द ग्रेटर फॉल्स वैम्पायर बैट, द हेयरी फेस्ड बैट, द हॉड्सगन बैट, द हटन्स ट्यूब नोज बैट एंड
राउंड ईयर्ड ट्यूब्ड नोज्ड बैट, ये सारी बैट मणिपुर की इस केव से मिली हैं। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है वो इस तरह से पूछ लें कि स्पीशीज का नाम दे दें और पूछ लें कि ये किस पर्टिकुलर जीनस को बिलोंग करती हैं। तो याद रखिएगा ये बैट्स हैं जो मणिपुर की पैलियोलिथिक एज की केव से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जिसमें ये एक रिस्क बताया गया है। एक स्टडी हुई और जिसमें बताया गया कि क्लाइमेटिक चेंज का एक बड़ा आउटकम ये हो सकता है वायरल स्पिल ओवर। वायरल स्पिल ओवर एक इफेक्ट हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज का, और इस स्पिल ओवर की वजह से भविष्य में भी कोविड जैसे पैंडेमिक हमें देखने मिल सकते हैं। वायरल स्पिल ओवर इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेटिक चेंज विच में रिजल्ट इन पैंडेमिक्स इन फ्यूचर। क्या होता है वायरल स्पिल ओवर, देखते हैं। सो वायरल स्पिल ओवर अकर्स व्हेन वायरस ओवरकम सेवरल बैरियर्स टू इन्फेक्ट न्यू होस्ट फ्रॉम रिजर्वायर होस्ट। ठीक है, एक रिजर्वायर होस्ट होता है जिसमें यूजुअली वायरस रिसाइड करते हैं। उस रिजर्वायर होस्ट से नए होस्ट तक पहुंचने में कई सारे बैरियर्स वायरसेस को पार करने होते हैं, और जब वो इस तरह के बैरियर को ओवरकम कर जाते हैं, इस सिचुएशन को कहा जाता है स्पिल ओवर। दैट सिंपली मीन्स दैट there will be a rapid transfer of virus from one host to another host which may lead to pandemic. All right, ये कहाँ की रिसर्च थी तो ये नाम मैं नहीं समझता बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा ने ये रिसर्च की थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा की ये रिसर्च थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और आप इसको अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स जो आपके प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज a special meeting of United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee is set to be held in India. UNSC की काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग है, वो इंडिया में होना शेड्यूल किया गया है। Then 2 beaches in Lakshadweep received international eco label, that is the blue flag. लक्षद्वीप के 2 आइलैंड को इंटरनेशनल इको लेवल प्राप्त हुआ है, ब्लू फ्लैग। कौन कौन से? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, इन दोनों बीचेस के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, thirdly a new species of plant named Elmenia multiflora was discovered in granite hillocks of Palakkad. ठीक है, next one liner is India's first migration monitoring system inaugurated in Mumbai. And lastly, 27th October, that is today, is observed as National Infantry Day. Very, very important day to remember. So this is it for today's news. Now let's proceed with the क्विज। ठीक है, यदि आपने आज की न्यूज़ बहुत ध्यान से सुनी है तो इसको आंसर करना आपके लिए बहुत कठिन बात नहीं होगी। अगर आपको इस क्विज के आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज नेशनल इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व? 7th October, 17th October, 27th October और 30th of October. Quite easy one. Next question, recently Manipur evicted bats from a cave. These caves belongs to which age? Chalcolithic age, Paleolithic age, Mesolithic age or Neolithic age? So if you know the answer, please let us know in the comment box. This is it from my side. I hope you like this video, and if you really like this video, do like it on YouTube as well. आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए। हमारा एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, R26 Zone 2 MP नगर भोपाल। ऑलराइट, तो इस वीडियो को आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स या डाउट्स यदि हों तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।
और हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज मी वरुण प्रधान साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। विल सी यू सून विद another such wonderful video. Have a great day.